شیربین کے سبھی سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ سامعین، ملک آج اپنا 76واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور آج یوم جمہوریہ کے سلسلے میں جو تقریبات منعقد ہوئیں، آج کے شیربین کا بیشتر حصہ انہی خبروں پر مبنی ہوگا۔ ایک وقفے کے بعد آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، ملک آج اپنا 76واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوئی۔ سب سے بڑی تقریب کرتویہ پتھ نئی دلی میں منعقد ہوئی، جہاں آج صبح صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے قومی جھنڈا لہرایا اور پریڈ پر سلامی دی۔ جموں کشمیر میں سب سے بڑی تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں منعقد ہوئی، جہاں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ جموں میں منعقد تقریب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبران اسمبلی اور دیگر سیاسی لیڈران بھی شامل رہے۔ کٹھوعہ میں کابینہ وزیر ستیش شرما نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی لی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنی تقریر میں کہا کہ جموں کشمیر کی معیشت میں 9.5% کی شرح کا اضافہ ہوا ہے، جو حکومت کے مستقل اقدامات اور اسٹریٹجک پالیسی اقدامات سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں نومبر 2024 تک ریکارڈ توڑ 2,36,000 سیاح آئے اور گلمرگ میں 7,68,000 سیاح گنڈولا سے محسوس ہوئے اور 2024 کے دوران 103 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ ایک رپورٹ جموں سے جاوید محراب کی زبانی۔ تخت حفاظتی گھیرے میں 76ویں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب یہاں سرمائی راجدھانی جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے پہلے یہاں جموں میں پچھلے 3 دنوں سے چپے چپے پر پولیس اور CRPF کی ٹیمیں تعینات تھی۔ وہیں شہر کے تمام ناکوں اور سڑکوں پر پولیس نے تلاشی اور پوچھ تاچھ کو سختی سے لاگو کیا ہوا تھا۔ وہیں دلہن کی طرح سجائے گئے جموں شہر کے تمام چوک چوراہے، سرکاری عمارتیں اور نجی دفاتر 3 رنگوں کی روشنی میں جگمگا اٹھے تھے۔ مولانا آزاد اسٹیڈیم یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز ٹھیک 10 بجے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی پرچم لہرا کر کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پریڈ کا جائزہ لیا اور ہاتھ ہلا کر بڑے اسٹیڈیم میں لوگوں کے جوش و خروش کا جواب بھی دیا۔ اس موقع پر پولیس، فوج، پیراملٹری فورسز کی مختلف ٹکڑیاں، NCC کیڈٹس، فارسٹ اور فائر اینڈ ایمرجنسی کی ٹیمیں، اسکولی بچوں نے پریڈ میں حصہ لے کر سلامی منچ کی اور پریڈ کرتے ہوئے مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ تقریب سے مخاطب ہوتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری امن و آشتی کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تاکہ بانٹنے والی طاقتوں کو ہرایا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک ساتھ مل کر جوش و خروش کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل بھی کی۔ 3 سطحی گورننس کو بنائے جانے پر بھی لیفٹیننٹ گورنر نے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا مالی استحکام مضبوطی کے ساتھ 9.5% کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، جس سے آنے والے وقت میں بہتر پالیسی، مستحکم سرکار کے اقدامات اور فیصلوں کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ پچھلے वर्ष اکتوبر میں جموں کشمیر میں شانتی پورن اور نسپکش विधान सभा चुनावों के लिए मैं सब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। इस मौके पर तकरीब में जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और
एडमिनिस्ट्रेशन के मुतअद्दिद अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब में जम्मू कश्मीर के कल्चरल और सकाफती तहजीब को दिखाती हुई नए प्रोग्राम के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रंगों के टैबलोज और मोटरसाइकिल के करतब दिखाए भी गए और इस मौके पर लोगों से बड़े स्टेडियम से कलाकारों के करतबों को दाद भी मिली। वहीं इस मौके पर खत्ते के मुतअद्दिद जिलों में यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्कद हुई और जोश खरोश के साथ यौम जमहूरिया में लोगों ने हिस्सा भी लिया और तकरीबात में कौमी परचम लहराने के साथ साथ कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्कद हुए। जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला तरक्याती चेयरमैन धनतेर सिंह कोतवाल ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह कठुआ में जम्मू कश्मीर के काबीना के वजीर सतीश शर्मा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। उधमपुर में जम्मू कश्मीर काबीना के वजीर जावेद अहमद राना ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। किश्तवाड़ के चौगान मैदान में जिला तरक्याती चेयरमैन पूजा ठाकुर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह रामबन में जिला तरक्याती चेयरमैन डॉक्टर शमशाद शान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। रियासी में जिला तरक्याती चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह तांबा में रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में जिला तरक्याती चेयरमैन केशवलाल शर्मा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसी तरह शहर के मुतअद्दिद इलाकों और चौक चौराहों पर भी मुतअद्दिद यौम जमहूरिया के प्रोग्राम हुए, जिनमें मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने सिटी चौक में कौमी परचम लहराया और इसी तरह बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा ने बीजेपी ऑफिस में और प्रदेश कांग्रेस के तारिक हमीद कर्रा ने शहीदी चौक में कांग्रेस के दफ्तर पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने अपने सूबाई ऑफिस में कौमी परचम लहराया। कुल मिलाकर खत्ते भर में यौम जमहूरिया की तकरीबें धूमधाम और जोश खरोश के साथ मनाई गई। यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू और मुख्तलिफ अजला में मुनक्कद तकरीबात के मुतल्लिक रिपोर्ट दे रहे थे जावेद मेहराब। इधर वादी कश्मीर में सख्त सर्दी के बावजूद ब्लॉक सतह से लेकर जिला सतह तक यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाई गई। वादी में हिफाजत के खास इंतजाम किए गए थे और इसके नतीजे में आज शहरों और कस्बों में ट्रांसपोर्ट भी कम नजर आया। शहरी श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी नाके लगा दिए थे। अलबत्ता आज इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रही। वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहाँ जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला के मुशीद नासिर इस्लामानी और दीगर लीडरान मौजूद थे। अलबत्ता पीडीपी, बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर जमातों के लीडरान बख्शी स्टेडियम में नजर नहीं आए। इस मौके पर नायब वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि स्टेटहुड और खुसूसी दर्जे की बहाली नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हम आईन हिंद के तहत ही खुसूसी दर्जा मांग रहे हैं। रियासती दर्जे की बहाली पर नायब वजीर आला ने कहा कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत तश्कील दी तो सबसे पहले रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार स्टेटहुड और खुसूसी दर्जे की बहाली को लेकर अपनी आवाज हर फोरम पर बुलंद करेगी। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि मुल्क की बहुत सारी रियासतों को खुसूसी दर्जा मिला है और हम भी आइन के तहत खुसूसी दर्जे की बहाली चाहते हैं। एक रिपोर्ट सईद यासिर से। कश्मीर सूबे की सबसे बड़ी यौम जमहूरिया की तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। चिले कलाम की सुबह की सर्दी के बावजूद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के दस्तों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों और मुकामी फनकारों ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए और रिवायती लोक रक्स भी किया। आज की यौम जमहूरिया की तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वजीर आला के मुशीद नासिर इस्लामानी, एमएलए लालचौक एहसान परदेसी के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। यौम जमहूरिया की तकरीब को देखने के लिए पूरा बख्शी स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। ताहम इसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन ही थे। सुबह सवेरे से ही बख्शी स्टेडियम के मुख्तलिफ गेटों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। श्रीनगर खासकर मौलाना आजाद रोड, रेजिडेंसी रोड के आसपास की इमारतों और अहम मुकामात जिनमें फ्लाईओवर शामिल हैं को कल से ही चरागाह किया गया था। यौम जमहूरिया की तकरीब जिले के तमाम बड़े सरकारी व गैर सरकारी इदारों में भी मुनक्कद हुई, जिनमें हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तारीखी घंटाघर, एसएमसी ऑफिस, एजीज ऑफिस के अलावा दूसरे मुकामात पर भी मुनक्कद हुई। यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब करते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने जो
وعدے عوام سے کیے ہیں ان سب کو مرحلہ طریقوں پر پورا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی سرکار کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے جموں کشمیر کو جلد از جلد ریاست کا درجہ بحال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی سرکاری نوکریاں یہاں کے باشندوں کو دینے اور زمین کا تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہندوستانی آئین کو جموں کشمیر میں یہاں مضبوط کیا اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی شیخ محمد عبداللہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ راجیہ کی استھتی کا سماعت ہونا چاہے کسی بھی ادیش سے کیا ہو، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں گہری پیڑا اور اسنتوش پیدا کیا ہے۔ راجیہ کی استھتی کیول سوائتا کا پرتیک نہیں تھی، بلکہ یہ جنتا کے آتم وشواس اور آتم سمان کی بنیاد تھی۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی جائز مانگ ہے کہ ان کے ادھیکار سوائتا اور راجیہ کا درجہ واپس ملے۔ منتری منڈل پہلے ہی ایک پرستاو پارت کر چکا ہے اور پردھان منتری جی نے بھی راجیہ کا درجہ بحال کرنے کی اپنی پرتیبدھتا کو دہرایا ہے۔ لوکتنتر کی اصلی طاقت جنتا کی آواز میں ہوتی ہے اور ہمارا سموِدھان اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہر ناگرک کو اپنے ادھیکاروں کے لیے آواز اٹھانے کا حق ہے۔ اس گنتنتر دیوس کے اوسر پر ہم کیندر سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنیں اور اس چھیتر کو پھر سے اس کی راجیہ کی استھتی بحال کریں۔ راجیہ کی استھتی کی بحالی نہ کیول یہاں کے لوگوں کے آتم وشواس کو واپس لائے گی بلکہ وکاس اور سمردھی کے راستے بھی کھولے گی۔ یہ قدم چھیتر میں شانتی، بھائی چارہ اور لوکتانترک مولیوں کو بھی مضبوط کرے گی۔ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے بارے میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ان کی واپسی کے بارے میں بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ ادھر وسطی ضلع بڈگام میں ضلع ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ضلع کی تمام سب ڈویژنوں، تحصیل اور بلاک سطح مقامات پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ ضلع بڈگام کی سب سے بڑی تقریب اسپورٹس اسٹیڈیم بڈگام میں منعقد ہوئی، جہاں ڈی ڈی سی چیئرمین نذیر احمد خان نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ اس تقریب میں پولیس، سی آر پی ایف، این سی سی کیڈٹوں کے علاوہ اسکولی بچوں نے بھی مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ ادھر گاندربل ضلع میں بھی یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب قمریہ اسٹیڈیم گاندربل میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی چیئرپرسن نصرت اشفاق نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ اپنی تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ پچھلے سال میں گاندربل ضلع میں 116 کلومیٹر سڑکوں کی میگڈمائزیشن کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، زراعت اور دیگر شعبوں میں بھی گاندربل ضلع میں کافی کام ہوا ہے اور اسی شدت کے ساتھ یہ کام جاری رہے گا۔ سری نگر، بڈگام اور گاندربل میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تفصیلات دے رہے تھے سعید یاسر۔ شہربین جاری ہے آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم۔ سامعین، یوم جمہوریہ کی تقریبات شمالی کشمیر کے سبھی علاقوں میں منائے جانے کی خبریں ہیں۔ دور دراز علاقہ گریز، کرنا، کیرن، متسل، اوڑی اور بنیار سے بھی تقریبات منانے کی خبریں ہیں۔ البتہ ضلع ہیڈ کوارٹر بارامولہ، بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں بڑی تقریبات منائی گئیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے ان میں شمولیت کی۔ البتہ بارامولہ میں جموں کشمیر کے وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ شمالی کشمیر میں آج منعقدہ تقریبات کے احوال بتا رہے ہیں بارامولہ سے کرامت قیوم۔ شمالی کشمیر کے تینوں اضلاع بانڈی پورہ، کپواڑہ اور بارامولہ میں 76ویں یوم جمہوریہ پر تقریبات منعقد ہوئی۔ ضلع بارامولہ میں سب سے بڑی تقریب پولیس لائنز بارامولہ میں منعقد ہوئی، جہاں پر وزیر زراعت و دیہی ترقی جاوید احمد ڈار نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی۔ اس موقع پر ممبران اسمبلی سجاد شفیع اوڑی، جاوید حسن بیگ اور عرفان حفیظ لون، ڈپٹی کمشنر بارامولہ، ایس پی آپریشن فیروز ریایا، ڈی ڈی سی ممبران، آرمی، پولیس اور سول انتظامیہ کے افسران کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ ادھر اوڑی میں ایس ڈی ایم اوڑی جاوید احمد راتھر، سوپور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور شبیر احمد رینا، پٹن میں ایس ڈی ایم پٹن ڈاکٹر گلزار احمد، ٹنگمرگ میں چیف ایگزیکٹو آفیسر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طارق حسین نے جھنڈا لہرایا۔
और परेड पर सलामी ली। इधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स में झंडा लहराया और सलामी ली। तहसील हेडक्वार्टर्स पे भी तकरीबात मुनक्कद हुई। जिले बांडीपोरा में सबसे बड़ी तकरीब शेरी कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा में मुनक्कद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। जबकि बांडीपोरा मिनी सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इधर गुरेज सब डिवीजन में एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। जबकि सुंबल में एसडीएम मुर्तजा अहमद शेख ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। जिला में तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात मुनक्कद की गई। इधर सरहदी जिला कुपवारा में सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन कुपवारा में मुनक्कद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। जबकि करना में एसडीएम टंगड़ार जफर अहमद ने झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। इधर हंदवारा में डीपीएल कोलनगाम हंदवारा में प्रोग्राम ऑफिसर हकीम तनवीर अहमद ने झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तीनों अजला में कल शाम से ही सरकारी इमारतों पर चरागान किया गया है। शुमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भी 76वें यौम जुमूरिया के मौके पर तकरीबात का एहतमाम रहा। तफसीलात दे रहे थे करामत क्यूम। सामिना जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफातर पर कौमी परचम लहराया गया और परेड पर सलामी ली गई। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग RK श्रीवास्तव ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इसी तरह की तकरीबात नारबल ट्रांसमीटर शंकराचार्य कुपवाड़ा और उड़ी में भी मुनक्कद हुई। जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर महकमे के डायरेक्टरेट ऑफिस जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कौमी परचम लहराया, जबकि तुलसीबाग श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफिस में भी तकरीब मुनक्कद हुई। इस दौरान जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग के बला इलाकों में भारी बर्फबारी के बावजूद यौम जुमूरिया की तकरीबात जगह जगह मनाने की खबरें हैं। जनूबी कश्मीर के चारों अजला में यौम जुमूरिया की तकरीबात पूरे जोश खरोश के साथ मनाई गई। जिला अनंतनाग में यौम जुमूरिया की सबसे बड़ी तकरीब सईद हिमायू मुजम्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनाबल के अहाते में मुनक्कद हुई, जहां पर वजीर बराई तालीम, समाजी बहबूद व सेहत सकीना यतू ने परचम कुशाई की और परेड पर सलामी ली। मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मुत्तू, SSP अनंतनाग GV संदीप चक्रवर्ती, ADDC शेख अब्दुल अजीज, ADC फयाज अहमद वांडे, ADC इलियास अहमद नासिर और ACR रईस अहमद भट्ट के अलावा पुलिस, फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरान और पंचायती अदारों के मेंबरान के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। जबकि स्कूली तलबा के अलावा आम शहरियों ने भी तकरीब में शामिल होकर इसकी रौनक को दुआला कर दिया। वजीर मौसूफ सकीना यतू ने यौम जुमूरिया की खुसूसियात पर रोशनी डाली और तमीर और तरक्की का खुलासा पेश करते हुए सरकार की तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों के अलावा मंसूबों पर रोशनी डाली। इसी तरह की तकरीबात कुलगाम में भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त के बीच मुनक्कद हुई और इस मौके पर DDC चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल परे ने पुलिस लाइन कुलगाम के अहाते में कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में पुलिस, CRPF, खवातीन पुलिस, होमगार्ड, NCC और स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर शफी खान ने इससे कबल 8 बजे के करीब अफसरान और लोगों की एक भारी जमीयत की मौजूदगी में मिनी सेक्रेटरीट के अहाते कौमी परचम लहराए और परेड पर सलामी ली। इसी तरह पहाड़ी जिला शुपियां में भी सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन बटपोरा के अहाते में मुनक्कद हुई, जहां पर DDC चेयरपर्सन बिल्किस जान ने जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियान मोहम्मद शाहिद सलीम डार, SSP शुपियान इनायतुल्लाह चौधरी, ADDC डॉक्टर नासिर अहमद लोन, ADC डॉक्टर जाकिर हुसैन फाज और ACR शकूर अहमद डार, फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया के दीगर आला अफसरान के साथ साथ लोगों की एक भारी जमीयत की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। जिला पुलवामा में भी तहसील सदर मकामात के अलावा ब्लॉक सतह पर भी यौम जुमूरिया की तकारीब का एहतमाम किया गया, जबकि सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन पुलवामा के अहाते में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी DDC चेयरपर्सन सैयद अब्दुल बारी अंद्राबी ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क्यूम, SSP पुलवामा PD नीतिया और ADDC मोहम्मद अशरफ शेख के अलावा पुलिस, CRPF, फौज और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ आम लोगों की एक भारी जमीयत मौजूद थी। इधर जम्मू सूबे के खिदर चनाब और पीर पंचाल में भी यौम जुमूरिया की तकरीबात जोश खरोश के साथ मनाई गई। बानिहाल में SDM बानिहाल रिजवान असगर ने परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। उधर जिला राजौरी और पूंछ में भी यौम जुमूरिया की तकरीबात मनाने की खबरें। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंड के बावजूद आबादी ने इन तकरीबात में हिस्सा लिया। पूंछ से एक रिपोर्ट KD मीनी की ज़बानी।
पुंछ में सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में के सब्जागार में मुनक्कद हुई, जहां चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल तहजीम अख्तर ने ठीक 10 बजे परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी। परेड का निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस और स्कूली बच्चों की 31 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। फिर मोहतरमा ने जिला भर में होने वाली तमीरी और तरक्याती सरगर्मियों का जायजा पेश करते हुए बताया कि इस बरस मरकजी हुकूमत की तरफ से महकमा गिरफ्त के तहत पुंछ को जम्मू और श्रीनगर से जोड़ने वाली 2 शाहराहों को नेशनल हाईवे बनाने की मंजूरी मिली है। उन्होंने मजीद बताया कि इस बरस 12,308 खानदानों के घर मुकम्मल हुए हैं। अपने खिताब के बाद तहजीम अख्तर ने परेड पर सलामी ली। फिर पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी और कश्मीरी में इलाकाई तबदली प्रोग्राम पेश हुए और इनामात तकसीम किए गए। उधर राजौरी में चेयरमैन तरक्याती कौंसिल राजौरी नसीम लियाकत ने पुलिस लाइन स्टेडियम में झंडा लहराने की रस्म अंजाम दी। फिर परेड का निरीक्षण किया, जिसमें स्कूली बच्चों और पुलिस की 29 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। आपने बधाल गांव में नामालूम बीमारी के बायस होने वाली अमवात के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत की तरफ से हर तरह की इमदाद करने का यकीन दिलाया। फिर उन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली, जिसके बाद पहाड़ी और गोजरी कबायली तमद्दन की रंगारंग झलकियां पेश की गई और इनामात तकसीम हुए। स्वरकोट, मेंढर मंडी, थन्ना मंडी, बुग्गल, कालाकोट, नौशहरा और सुंदरबनी से भी यूम जमहूरिया की तकरीबात मुनक्कद होने की इत्तलात मशहूर हुई हैं। पुंछ और राजौरी में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से रिपोर्ट दे रहे थे KD मिनी। सभी जम्मू कश्मीर सरकार ने लिटरेचर, आर्ट्स, क्राफ्ट, सहाफत, माहौलियात, पब्लिक सर्विस और दीगर शोबों में नुमाया काम अंजाम देने पर आज की शख्सियात को अवार्ड से नवाजा है। इतलात के मुताबिक थिएटर से ताल्लुक रखने वाली सरकर्दा शख्सियत मुश्ताक अली खान, कुपवाड़ा के नौजवान सहाफ़ी यहिया सुल्तान, गोजरी ज़बान के कलमकार और